Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Today we are going to discuss 13.6 article electric generator from the lesson number 13 magnetic effect of electric current. शुरू करते हैं. Based on the phenomenon of the electromagnetic induction, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हम करेंगे बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर. द एक्सपेरिमेंट्स स्टडीड अबाउट द जनरेट इंड्यूस करंट विच इज़ यूजुअली वेरी स्मॉल. यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर हमने स्टडी किया है कि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है जो कि एक्टिविटी 13.9 में हमने देखा, ये बहुत ही स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस होता है. एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ लार्ज करंट फॉर यूज इन अ होम्स एंड इंडस्ट्रीज. लेकिन इसी प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए हम बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में लार्ज करंट यूज़ करने, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो यूजेस हैं ये बहुत बड़ा है. लार्ज स्केल में हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है घर पे और इंडस्ट्री में. तो इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. तो लार्ज पैमाने पर इसी तरह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है. इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी है इसका यूज़ करके कंडक्टर को रोटेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल. एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एज शोन इन द फिगर 13.9 consists a rotating rectangular coil ABCD placed between the two poles of the permanent magnet. The two ends of this coil are connected with the two rings R1 and R2. The inner side of these rings are made insulated and two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept pressed separately on the ring R1 and R2 respectively. The two rings R1 and R2 are internally attached to an axle and axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. Outer ends of the two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of the current in the given external circuit. When the axle attached to the two rings is rotated such that the arm AB moves up and the CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet, and let's say the coil ABCD is rotated clockwise in the arrangement shown in the figure. By applying Fleming's right hand rule, the induced current are set up in this arm along the direction AB and CD, and thus the induced current flows in the direction ABCD. If there are large number of the turns in the coil, the current generated in each turn adds up to give a large current through the coil, and this means that the current in the external circuit flows from B2 to B1. After the half rotation, arm CD start moving up and AB moving down. As a result, the direction of the induced current in both the arms change, giving rise to the net induced current in the direction DCBA. The current in the external circuit now flows from B1 to B2, and thus after every half rotation the polarity of the current in the respective arms changes. Such a current which change direction after equal intervals of time is called the alternative current, means abbreviated as AC. This device is also called the AC generator. To get the direct current DC, which does not change its direction with time, a split ring type commutator must be used with the arrangement one brush is at all times
in a connected with the arm moving up in the field, while the other in the connect with the arm moving down. We have seen the working of a split ring commutator in the case of the electric motor. See in the figure 13.5. Thus the unidirectionally current is produced. The generator is called a DC generator. The difference between the direct and alternative currents is that the direct current always flows in the one direction, whereas the alternative current reverses its direction periodically. Most power situation constructed these days produce AC. In India, AC changes direction after every 1/100 seconds, and that is the frequency of AC is 50 Hz. And important advantages of AC over DC is that electric power can be transmitted over a long distance without much loss of energy. तो हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी है ये यहाँ पर यूज़ होती है कंडक्टर को रोटेट करने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड में रहे हुए इस कंडक्टर को रोटेट करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द जनरेटर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर एक रोटेटिंग रेक्टेंगुलर शेप की कोइल ABCD प्लेस की जाती है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। मतलब कि स्थिर मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप ABCD की कोइल लगाई जाती है। टू एंड्स ऑफ दिस कोइल आर कनेक्टेड द टू रिंग्स R1 एंड R2, और इन कोइल के दो एंड्स के साथ रिस्पेक्टिवली रिंग लगाई जाती है R1 और R2। इन दोनों रिंग की जो इनर साइड है ये इनर साइड इंसुलेटेड होती है, और टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस B1 एंड B2 के साथ ये केप्ट प्रेस सेपरेटली ऑन द रिंग्स R1 एंड R2। तो ब्रश B1 और B2 के साथ इसे सेपरेटली प्रेस किया जाता है रिंग R1 और R2 को। यहाँ पर जो दो रिंग हैं R1 एंड R2 आर इंटरनली अटैच टू द एक्सेल। अंदर की तरफ से वो एक्सेल के साथ अटैच होती है, और एक्सेल जो है वो मैकेनिकली रोटेट होता है आउटसाइड की तरफ एंड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर की तरफ एक्सेल रोटेट होने से अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने प्लेस की है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसे वो रोटेट करता है, और इसे रोटेट करने के कारण आउटर एंड्स ऑफ द टू ब्रशेस आर कनेक्ट टू द गैल्वेनोमीटर। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रशेस लगाए हैं B1 और B2, इसके बीच में पैरेलल इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है, जो कि आप फिगर में देख सकते हो, टू शो द फ्लो ऑफ द करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर अगर जो कोई करंट फ्लो होता है तो इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द जनरेटर। सो व्हेन द एक्सेल अटैच टू द टू रिंग्स इज रोटेट, जब एक्सेल को दो रिंग के साथ अटैच किया जाता है एंड रोटेटेड सच दैट आर्म AB मूव्स अप, तो जब वो रोटेट होते हैं तो कोइल का AB आर्म्स है ये ऊपर की तरफ मूव होता है, और CD आर्म्स है वो नीचे की तरफ। इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द परमानेंट मैग्नेट, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। लेट अस से कोइल ABCD इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। तो जैसा कि हमने आपको 13.9 फिगर दिखाया था, उस फिगर की सिचुएशन में कोइल ABCD है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जब हम यूज़ करेंगे, द इंड्यूस करंट आर सेट अप इन दिस आर्म अलोंग द डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट सेटअप होगा, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग द AB एंड CD रहेगी। दस एन इंड्यूस करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ABCD,
और इसके कारण इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है या फिर इसका फ्लो है ये A to B, B to C to D डायरेक्शन में रहेगा। इफ़ देर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, अगर जो कोइल में लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स लगाए गए हैं, मतलब कि बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बनाए गए हैं कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू, दिस मीन्स दैट द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B to 1। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगा B2 से B1 की तरफ। एंड आफ्टर हाफ रोटेशन, अर्ध चक्र पूर्ण होने के बाद CD स्टार्ट मूव अप, CD आर्म है वो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा और AB है वो नीचे की तरफ। एंड एज ए रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन बोथ द आर्म्स चेंज। तो इसके साथ दोनों आर्म्स में डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज हो जाएगी एंड गिविंग राइज टू द नेट इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन DCB। और इसके कारण डायरेक्शन D से B, D से C, C से B और B से A की तरफ इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट नाउ फ्लोज फ्रॉम B1 to B2। और एक्सटर्नल सर्किट में इसके कारण B1 से B2 की तरफ करंट फ्लो देखने को मिलेगा। Thus after every half rotation the partially of the current in the respective arms changes। तो हर एक हाफ रोटेशन के बाद इसी तरह करंट की जो डायरेक्शन है वो अल्टरनेटिवली चेंज होती जाएगी एंड विच चेंज डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये जो यहाँ पर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है ये एग्जैक्टली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, देन इट इज़ कॉल्ड द अल्टरनेटिव करंट। और इसीलिए इसे अल्टरनेटिव करंट या फिर AC करंट कहा जाता है। एंड दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड द AC जनरेटर। और ये जो डिवाइस अभी हमने देखी जिसके माध्यम से हम अल्टरनेटिव करंट प्राप्त कर रहे हैं इसे हम AC जनरेटर कहते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। टू गेट द डायरेक्ट करंट DC, अब अगर जो हमें डायरेक्ट करंट DC चाहिए विच डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है टाइम ड्यूरेशन के साथ, तो हमें स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज़। तो हमें स्प्लिट रिंग टाइप का कम्यूटेटर यूज़ करना होगा जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था। विथ दिस अरेंजमेंट वन ब्रश इज़ एट ऑल टाइम्स, जिसमें रिंग के साथ एक ब्रश है वो ऑल टाइम कनेक्ट रहेगा विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड, जब आर्म है वो फील्ड के अंदर मूव करेगा। वाइल द अदर इज़ कनेक्टेड विद द आर्म मूविंग डाउन, और दूसरा ये कनेक्ट रहेगा आर्म मूविंग डाउन, नीचे की तरफ जो आर्म बनेगा इसके साथ। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। जैसा कि हमने आपको आगे बताया इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर रिंग स्प्लिट रिंग है, इसका एज ए रोल ऑफ द कम्यूटेटर हम अच्छी तरह से स्टडी करके आए हैं, यही यूज़ यहाँ पर भी होगा। thus the यूनिडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस, और इसके कारण एक ही दिशा में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। द गैल्वेनोमीटर इज दिस जनरेटर thus is called the DC generator, so this generator is called the DC generator। तो इस तरह एक ही डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने वाली जनरेटर को हम DC जनरेटर कहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करंट के बीच में अगर जो डिफरेंस की हम बात करते हैं तो डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट करंट है वो ऑलवेज फ्लो इन द वन डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, एंड वेयर इज द अल्टरनेटिव करंट रिवर्स इट डायरेक्शन पीरियडिकली, और अल्टरनेटिव करंट में पीरियडिकली वेज पर डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्ट दिस डे प्रोड्यूस AC। हमारे देश के अंदर और विश्व के अंदर हाल में ज़्यादातर पावर स्टेशन है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ये ऐसे करंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर जो भारत की बात करते हैं तो AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड। तो हमारे यहाँ ऐसे करंट जो प्रोड्यूस किया जाता है इसकी डायरेक्शन को प्रति 1/100 सेकंड्स हम चेंज करते हैं, एंड दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC इज़ 50 हर्ट्ज़। और इसीलिए भारत में प्रोड्यूस होने वाले AC करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ बताई जाती है या 220 वॉट। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द AC अगेंस्ट द DC करंट के अगेंस्ट में AC करंट का एडवांटेज ये है
कि इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। हम इजीली इलेक्ट्रिक पावर है इसे लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी लॉस भी नहीं लेना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें हमने एसी और डीसी जनरेटर और साथ में डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट की बात की। अब आपकी स्क्रीन पर इस टॉपिक के रिलेटेड टेक्सचुअल क्वेश्चंस, यहीं पर इस वीडियो को हम रोकेंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच।